السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں عظما چوہدری۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اس سے پہلے قومی اسمبلی کی کارروائی آپ دیکھ رہے تھے۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں گے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمان عوامی امنگوں کی ترجمان اور منتخب نمائندے عوام کے اعتماد اور امنگوں کے امین ہوتے ہیں۔ امن کے فروغ، پائیدار ترقی اور اجتماعی سلامتی کے لیے اجتماعی اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کوئی قوم تنہا ترقی نہیں کر سکتی، ہمیں مشترکہ خوشحالی کی منزل اور شراکت داری کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ Parliaments, as the custodians of the people's will and the democratically elected representatives of their aspirations, have a unique and indispensable role to play in this endeavor. We are guardians of the most precious hope and sacred trust that our people have reposed in us. We are duty bound to honor those sacrosanct expectations to the best of our capabilities to bring about a collective improvement in the lives of those who we represent in our houses of parliament. My ultimate hope is that the peoples of all nations will stand united in promoting peace, advancing sustainable development and strengthening collective security, so that together we may build a world anchored in lasting peace and shared prosperity. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی وکالت کی ہے، امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں دشمن نے جب پاکستان پر جارحیت مسلط کی تو ہماری بہادر افواج نے بروقت اور فیصلہ کن کارروائی کی، جس سے بھرپور جواب دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ The theme of this conference, peace, security and development, could not be more timely and relevant. In the month of May, Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Our highly professional armed forces displayed remarkable preparedness and performed outstandingly on the battlefield. Their swift and decisive military action on land and in the air not only thwarted the enemy's designs but also demonstrated to the aggressor and of course the entire world Pakistan's iron resolve and determination to defend its sovereignty and territorial integrity at all costs. محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھتا ہے۔ پرامن افغانستان علاقائی اور عالمی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ پائیدار ترقی اسی وقت ممکن ہے جب کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں افغان سرزمین کا استعمال روکا جائے۔ A peaceful Afghanistan holds the key to regional connectivity, growth, progress and prosperity. This peace has remained elusive for decades. However, Pakistan has never lost hope. We believe in a peaceful neighborhood and have been striving hard for this purpose. It is most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Our abiding commitment to upholding peace and security in the world is manifested by our constructive role
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को हकीकत का रूप देने में चेयरमैन सेनेट और फोरम के बानी चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की काफ़ी शुक्र। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने खिताब में कहा कि कॉन्फ्रेंस का मौजू अमन, सलामती और तरक्की वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा करते हुए कहा कि माहौलियाती तब्दीली और दूसरे चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत ताउन वक्त की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पार्लिमानी सफारतकारी में मुज़ाकरात और ताउन बुनियादी सुतून है। अवाम की रहनुमाई के लिए पार्लिमान इंतहाई अहम फोरम है, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। सेक्रेटरी जनरल ISC और दीगर मुकर्ररीन ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि अवाम के एतमाद को अमली तौर पर इस्लाहात के जरिए यकीनी बनाना पार्लिमान की जिम्मेदारी है। बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम खबरें और भी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुनिया बदल रही है, लेकिन इंसानियत के सामने चैलेंजेस वही हैं। जंग, गुर्बत, नाइंसाफी और तकसीम। ऐसे में एक विजन उभरा, क़यादत का, मुकालमे का और इज्तिमाई अमल का। अप्रैल 2025 सियोल, जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में एक नया आलमी फोरम तश्कील पाया, इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, जो पार्लिमानी सिफारतकारी को एक नया रुख दे रहा है। और अब पाकिस्तान मेजबान है इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 इस्लामाबाद का 10 तब 12 नवंबर, जिसमें 45 मुमालिक के 100 से जायद स्पीकर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमैट्स और वफूद शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान को फख्र है कि वो आलमी रहनुमाओं की मेजबानी कर रहा है। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इस इज्तिमाई अज़्म की अलामत होगा जो पार्लिमानों को एक बेहतर, मुनसिफाना और पायदार दुनिया की तामीर में मुत्तहिद करेगा। पार्लिमानी सिफारतकारी अमन, सलामती और जामे तरक्की की ज़ामिन। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मारगला डायलॉग 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश और कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में टकराव नहीं बल्कि ताउन को बुनियाद बनाना वक्त की ज़रूरत है और पाकिस्तान इलाकाई रवाबित और ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी को मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मुश्तरका अमली इक़दामात करना होंगे और आलमी इदारों को मजबूत बनाए बगैर दुनिया के चैलेंजेस का सामना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कसूरुल जहती फोरम्स की मजबूती और आलमी ताउन के मौसर निज़ाम के बगैर आलमी मसाइल हल नहीं हो सकते। इसाक डार ने मजीद ये भी कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी तक सब के लिए बिला तफरीक रसाई होनी चाहिए ताकि तरक्की के मौके मसावी तौर पर मुयसर आएँ और आलमी मुआशी मसावात को फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। उन्होंने आलमी इदारों की कमज़ोरी और सलामती काउंसिल के सियासी ताअत्तुल की जानिब इशारा करते हुए कहा कि आज इंसानियत कई पेचीदा चैलेंजेस का सामना कर रही है और आलमी ताउन के बगैर इनसे निबट आज़मा होना मुमकिन नहीं है। नायब वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मागला डायलॉग 2025 का मौजू असर हाज़िर के तकाज़ों से इंतहाई मुताबिकत रखता है और इस मुकालमे में पाकिस्तान का मकसद आलमी सतह पर पायदार तरक्की, ताउन और इंसानी फलाह के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार उजागर करना है। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। 59 शिकों पर मुश्तमिल आईनी तरमीम के नतीजे में चारों सूबों की नुमाइंदगी से नई फेडरल आईनी अदालत कायम होगी। हाई कोर्ट के जजेस की एक से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर मुमकिन होगी। सदर ममलिकत और गवर्नर को किसी दूसरे पब्लिक ऑफिस संभालने तक फौजदारी मुकदमात पर इस्तिस्ना हासिल होगा। आइन की 243 शेख में तरमीम की मंजूरी से 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खात्म, आर्मी चीफ के पास चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा भी होगा। शानदार कामयाबी के एतराफ़ की सूरत में मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के टाइटल मुतारिफ। तीनों टाइटल उम्र भर के लिए होंगे। मजीद तफसीलात बताएंगे अरसलान असद। सेनेट इजलास में कानून इंसाफ की सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी के सरबरा सेनेटर फारूक एच नाइक ने 27वीं आईनी तरमीम की तफसीली जायजे के बाद इसकी मंजूरी से मुतालिक रिपोर्ट ऐवान में पेश की। उन्होंने कहा कि जजों के तबादले से मुतालिक तरमीम भी मंजूर की गई है। जजों का तबादला अब जुडिशल कमीशन के तहत हो सकेगा। फारूक एच नाइक ने कहा कि हाई कोर्ट का जो जज तबादला कबूल नहीं करेगा उसके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा इसके अंदर तमाम प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी
नुमाइंदा लिया जाएगा। सेनेटर फारूक एच नाइक ने बताया कि कायमा कमेटी में बहस के दौरान MQM की जानिब से बल्दियाती निज़ाम और अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजावीज़ पेश की गई, जिन पर फौरी फैसला नहीं किया गया और इन पर मजीद मशावरत जारी रहेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने दस्तूर 27वीं तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। इस मौके पर वजीर कानून ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम, हाई कोर्ट के जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर, आर्म फोर्सेज की कमांड से मुतल्लिक आइन की शिक 243 में तरमीम, आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा दिया जाने, फील्ड मार्शल की तरह दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने की सूरत में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के नए टाइटल्स मुतारिफ कराने, सदर मुमलिकत और गवर्नर को उनकी आईनी मुद्दत के दौरान उम्र भर के लिए अदालती इस्तिस्ना हासिल होने जैसी तरमीम के अहम नुकात से मुतल्लिक ऐवान को आगाह किया। वजीर कानून ने बताया कि नई वफाकी आईनी अदालत का कयाम हमारे अदालती ढांचे में बड़ी तब्दीली है, जिससे इंसाफ के निजाम में मजमूई तौर पर बहुत बेहतरी आएगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये एक बुनियादी नुक्ता था कि मुल्क में वफाकी आईनी अदालत बनाई जाएगी, तो उस हवाले से ये जो शिक्कों में कुछ इजाफा है नज़र आता है, वो ज़्यादा शिक्कें जो हैं वो कॉन्सिक्वेंशल हैं। उसमें भी सर हमने एहतियात की है कि दोनों अदालतें जो हैं वो मतवाज़ी निज़ाम के तहत चलेंगी। जो चीफ जस्टिस ओरिजिनल सीनियरिटी में सीनियर होंगे वही जजेस अपॉइंटमेंट वाले कमीशन को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि मुआखजा करता है उसको चेयर करेंगे। जो दीगर इदारे हैं उनकी तकसीम भी इसी तरह की गई है। बाद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने दस्तूर 27वीं तरमीमी बिल 2025 की शिकवार मंजूरी ली। सेनेट में बिल की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान के वोट्स की जरूरत थी, जो हुकूमत ने हासिल कर लिए। अपोजिशन के 2 अरकान सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUI के अहमद खान ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में हुकूमत का साथ दिया। 64 members are in favor of the motion. Regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. बिल मजमूई तौर पर 59 शिकों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहली 3 शिकों की मंजूरी के अमल में सिर्फ 2 वोट खिलाफ आए। बाकी तमाम शिकों के हक में 64 और मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। हुकूमती अरकान का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम की मुतफ़िका मंजूरी से मुल्क की सियासत पर दूर रस मुस्बत असरात मुरतब होंगे। असलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सियासत और इल्म अदब के शोबे की नुमाया शख्सियत इरफान सिद्दीकी दार फ़ानी से रुखसत हो गए। वो गुज़िश्ता 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने इरफानुल हक सिद्दीकी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 4 बजे H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इरफान सिद्दीकी का शुमार मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मार्च सन 2021 में पंजाब से सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे। वो सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन भी थे। इरफान सिद्दीकी कई दिहाइयों तक तालीम और सहाफ़त के शोबों से मुंसलिक रहे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इरफान सिद्दीकी को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। सदर ममलकत ने कहा कि मरहूम की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। सदर ने इरफान सिद्दीकी के इसाले सवाब के लिए दुआ की और उनके ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मुअल्लिम और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। इरफान सिद्दीकी ने इल्म, बर्दाश्त, संजीदगी और दलील को हमेशा अपनी तहरीर और शख्सियत का महवर बनाया। वो मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन और हमारे करीबी साथी थे। इरफान सिद्दीकी की पार्टी के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी इल्मी खिदमात और कौमी बसीरत आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह रहेगी। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि अपने इंतहाई मुखलिस, बाएतमाद और वफाशवार भाई इरफान सिद्दीकी की वफात पर बहुत दुख है। इरफान सिद्दीकी से मोहब्बत का रिश्ता था। अपना गम अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं।
इरफान सिद्दीकी का कलम हमेशा उसूल और हुर्रियत फ़िक्र की दलील बना रहा। वो एक मुनफरिद लिखारी, आजिज मिजाज और रोशन दिमाग शख्सियत थे। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम और अहल खाना को सब्र दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मरियम नवाज ने कहा कि अंकल इरफान सिद्दीकी की वफ़ात वालिदा की वफ़ात की तरह एक बड़ा सदमा है। वो नहायत शफीक, इल्म दोस्त शख्सियत और वफ़ा का पैकर थे। इल्म और दलील से बात करना उनकी शख्सियत का तुर्रा इम्तियाज़ था। उनकी वफ़ात मुस्लिम लीग नून, फैमिली और ज़ाती तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ा गम है। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत के आला दर्जात अता फरमाए और अहले खाना को सब्र दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया है। सियासत और इल्म अदब की दुनिया में इरफान सिद्दीकी की खिदमत तादेर याद रखी जाएंगी और उनका तज़किरा हमेशा अक़ीदत व एहतराम से किया जाएगा। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उनका इंतकाल नाकाबिल तलाफ़ी इल्मी और फ़िक्री नुकसान है। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मरहूम मुस्लिम लीग नून के रोशन ज़मीर और वफ़ादार साथी थे। उनकी तहरीरी बसीरत और शफीक शख्सियत हमेशा याद रखी जाएगी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मरहूम इरफानुल हक सिद्दीकी की ज़िंदगी इल्म, अखलाक और खिदमत से इबारत थी। वो हमारे लिए रहनुमाई, मोहब्बत और बर्दाश्त की अलामत थे। उनके इल्म और किरदार की रोशनी से कौम फैज़ हासिल करती रहेगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इरफान सिद्दीकी के इंतकाल की खबर ने बहुत रंजीदा कर दिया है। मरहूम के इल्म, दोस्ती, शाइस्तगी और मतानत को हमेशा याद रखेंगे। अताउल्लाह तारड़ ने मरहूम इरफान सिद्दीकी की मग़फ़िरत और लाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा कि उनकी मुस्कुराहट, फ़िक्री गहराई और बुर्दबारी हमेशा याद रहेगी। वाना कैडेट कॉलेज में अफगान खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। इत्तलात के मुताबिक कॉलेज में छुपे 3 खारिजी अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं और एक इमारत में मौजूद हैं जो कैडेट्स की रिहाइश से दूर है। पाक फौज के जवान इमारत की क्लियरेंस इंतहाई महारत के साथ कर रहे हैं ताकि कैडेट्स की जिंदगियां महफूज रहें और कोई नुकसान ना पहुंचे। वाज़ेह है कि 10 नवंबर को अफगान ख्वारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी से धमाका किया, जिससे गेट और करीबी इमारतें तबाह हो गईं। इस कार्रवाई में पाक फौज के जवानों ने 2 ख्वारिजियों को मौके पर ही हलाक कर दिया था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों का इस्लाम या आवाम की खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं और ऑपरेशन खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कैडेट कॉलेज वाना में फितनतुल खारिज के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने फितनतुल खारिज के 2 हमलावर दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया और कहा है कि बुज़दिल दुश्मन ने एक बार फिर तालीमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। पूरी कौम बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सीसा पिलाई दीवार हैं। उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म से दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि दहशतगर्दों ने कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। और यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 20 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में भारतीय सरबरस्ती में काम करने वाले फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दक़ा खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी दहशतगर्द मारे गए। दर आदम खेल में किया गया एक और ऑपरेशन में 12 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम के तहत मादर वतन को इन खारजी दहशतगर्दों से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल और दर आदम खेल में फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है।
भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख एक बार फिर बेनकाब हो गई है। हर बड़े हमले के पीछे खुद भारतीय हाथ सामने आने लगे। भारतीय पुलिस रिपोर्ट्स और अदालती बयानात के मुताबिक 2007 की समझौता एक्सप्रेस, अजमेर और मालेगांव धमाके हिंदू इंतहापसंद तंजीमों की कार्रवाइयां थीं, जिनका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। साबिक भारतीय अफसरान और तफ्तीशी टीमों ने इंकशाफ किया है कि पार्लियामेंट, मुंबई, पुलवामा और उड़ी हमले में भी सियासी फायदे और आलमी हमदर्दी हासिल करने के लिए मंसूबे किए गए। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर ने पुलवामा हमले को मंसूबा बंद साजिश करार दिया, जबकि दिफाई माहिरीन और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उड़ी अटैक भी अंदरूनी मंसूबा बंदी का हिस्सा था। माहिरीन ने मुतालबा किया है कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की आज़ादाना बैनुल अक़वामी तहकीकात कराई जाएं ताकि खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सके। और नई दिल्ली धमाके के बाद भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफियों और अवाम ने बीजेपी हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। सहाफियों का कहना है कि हर इंतखाब से कबल धमाकों का ड्रामा रचाया जाता है ताकि सियासी फायदा हासिल किया जा सके। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रिदेवद बोरदोली के कहा है कि ये बिहार इंतखाबात से पहले का मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। भारतीय सहाफ़ी रवि नैयर ने खदशा जाहिर किया है कि बीजेपी की कमज़ोर पोजीशन के बायस मज़ीद ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। साबिक RSS रहनुमा यशवंत शिंदे के अदालती बयान का हवाला भी दोबारा ज़ेर बहस है, जिसमें इंकशाफ किया गया कि इंतखाबी फ़ायदे के लिए सिंह परिवार ने बम धमाके करवाए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बीजेपी हुकूमत हर बार पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराकर इंतखाबी हमदर्दी समेटने की कोशिश करती है। खबर देंगे आपको मशरिक़ वस्ता से, जहां जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक सह्यूनी फोर्सेस ने हमलों में 2 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। ड्रोन से खान यूनिस में हमले किए गए, जबकि इमदादी इदारों के मुताबिक इजरायली मुहासरे के बायस इमदादी सामान की तरसील महदूद है और इलाके में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत है। इजरायली फ़िज़ाइया ने जनूबी लेबनान में भी हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और शाम के सदर अहमद अल-शरा के दरमियान व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई है। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इलाकाई अमन, खित्ते और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में शाम में खाना जंगी और तामीर नौ पर भी बातचीत हुई। ट्रंप ने मुलाकात के बाद शामी सदर की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे शामी सदर पसंद आए और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि शाम कामयाब हो, क्योंकि ये मशरिक़ वस्ता का हिस्सा है। ट्रंप के अहमद अल-शरा से मुलाकात के बाद अमरीकी महकमा ख़जाना ने शाम पर आयद पाबंदियाँ 6 माह के लिए ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा ख़जाना ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों का खात्मा शाम की मईशत की तामीर में मदद के साथ साथ शहरियों के लिए खुशहाली फराहम करेगा। इराक में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। इंतखाबात में 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद 329 नशिस्तों के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नए इंतखाबात में 7,744 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 2,248 ख़वातीन उम्मीदवार हैं। नई पार्लियामेंट मुल्क के नए सदर और आइंदा के वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। इराक के आइन के मुताबिक इराक की पार्लियामेंट का स्पीकर सुन्नी मसलिक का होगा, जबकि वज़ीर आज़म शिया और सदर कुर्द मसलिक का होगा। लातीनी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर की जेल में खौफनाक हंगामा राई और भगदड़ मच जाने से 31 कैदी हलाक हो गए हैं। 27 कैदियों की मौत दम घुटने के बायस हुई और 4 को गोलियां लगी, जबकि 33 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल के अंदर से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें आती रहीं। एक्वाडोर में हालिया बरसों के दौरान जेलों में पुरतशद्दुद फसादात मामूल बन चुके हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों कैदी अपनी जानें गंवा चुके हैं। COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जसिंदा आर्डन के हमरा पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। पवेलियन पंजाब हुकूमत की जानिब से माहौलियाती इक़दामात और पायदार तरक्की के मंसूबों को उजागर करने के लिए कायम किया गया है। इफ्तिताह के मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दामात पर मबनी डॉक्यूमेंट्री देखी।
जसिंडा ऑर्डरन ने माहौलियाती बेहतरी के लिए मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात को जुर्रतमंदाना और मौसर करार दिया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने उन्हें न्यूजीलैंड की अवामी खिदमत के एतराफ़ में खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में माहौलियाती चैलेंजेस, आलमी ताउन और पायदार तरक्की के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब, राना सिकंदर और ज़ीशान रफ़ीक भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की सरबराही में मलाइशिया गोश्त बरामदात कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें $200 मिलियन के बरामदाती हदफ के हुसूल पर गौर किया गया। इजलास में वफाकी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने भी शिरकत की। जाम कमाल खान ने हिदायत की कि वर्किंग ग्रुप एक हफ्ते में हतमी रिपोर्ट पेश करे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों से भी मुशावरत की जाए। इजलास में गोश्त की बरामदात की हिकमत अमली, लागत, मुसाबकत और सप्लाई चेन के मसाइल पर भी तबादला ख्याल हुआ। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि फार्म से स्लॉटर हाउस तक मयार और वज़न के मयार को यकीनी बनाया जाए, जबकि हारून अख्तर खान ने तवील मुद्दती और पायदार शराकतदारी के लिए हुकूमत और निजी शोबे की मुश्तरका शमूलियत पर जोर दिया। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि भारत के साथ कीमतों का मुआवजा किया जाए ताकि पाकिस्तान की मुसाबकत बरकरार रखी जा सके, जबकि 14 से 18 माह की उम्र की भैंसों को बरामद के लिए मौजू करार दिया गया। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन पावर एक्सपो का आगाज़ हो गया, जिसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद आमिर जान और सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने किया। मज़ीद जानेंगे रियाद से हमारे नुमाइंदे वकार नसीम बामिक से। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्किदा ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन पावर एक्सपो के 7वें एडिशन में इंसानी वसाइल, अफरादी कुव्वत और मुलाजमतें फराहम करने वाली कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए थे। पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन और वजीर आला हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम समेत पहली मरतबा बलूचिस्तान टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जबकि दीगर प्राइवेट पाकिस्तानी रिक्रूटमेंट एजेंसियों की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए थे, जिनका इफ्तिताह सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक और नेफ्टेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद आमिर जान ने किया। इस मौके पर उनका कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए एक बड़ी मार्केट है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान से ज्यादा हुनरमंद अफराद को यहाँ भिजवाया जा सके, जिसके लिए हर साल 5 लाख नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है, और हम प्राइवेट सेक्टर को भी दावत देते हैं कि वो भी आगे बढ़ें और नौजवानों को हुनरमंद बनाने में अपना किरदार अदा करें। इस वक्त जो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी उसमें स्किल डेवलपमेंट है, और चाहे फेडरल लेवल पे हो चाहे प्रोविंसेस लेवल पे हो, इस वक्त पूरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये काम है। ना सिर्फ लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है स्किल डेवलपमेंट, ताकि लोकल इंडस्ट्री चल सके। सालों से पाकिस्तानी वर्कर्स जो है इस मुल्क में आके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि इस मुल्क की तामीर में एक बड़ा अहम इनका किरदार है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत की मजबूती के लिए भी वो एक अहम अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन पावर एक्सपो में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया था, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इथोपिया समेत दीगर ममालिक के सुफराए कराम समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। यौम इकबाल के मौके पर फ्रेंड्स ऑफ रोशनी ग्रुप के ज़रिए तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर द हेग में तकरीब मुनक्किद हुई। सिफारत खाना पाकिस्तान के कौंसलर जमाल नासिर ने कहा कि इकबाल का पैगाम खुद ही इंसान को अपनी पोशीदा सलाहियतों को पहचानने का दर्स देता है और बज़्म अदब सोसाइटी की काविशें काबिल तहसीन हैं। जर्मनी से आए शायर शफीक मुराद ने इकबाल के जर्मनी क़याम पर रोशनी डाली। सीनियर सहाफ़ी सेक्रेटरी कश्मीर पीस फोरम राजा फारूक हैदर ने कौंसलर सफारत खाना पाकिस्तान और जर्मनी से आए हुए शोरा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को खुद ही ईमान और अमल का दर्स दिया। मुकर्ररीन ने मुस्तफ़र पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को खुद ही ईमान और अमल का पैगाम दिया। नॉर्वे हुकूमत के ताउन से कायम अल मुनीर इंटरनेशनल स्कूल मंडी बहाउद्दीन में शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने अल्लामा इकबाल की तख्लीकात पर मबनी टैबलोस, तकारीर और शायरी पेश की, जिन्हें वालिदैन और असातिज़ा ने बेहद सराहा। प्रिंसिपल मैडम सना रियास ने अपने इख्तितामी खिताब में नौजवान नस्ल के लिए इकबाल के पैगाम खुदी और अमल की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में वालिदैन ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और स्कूल के तालीमी और हम निसाबी माहौल को सराहा। CEO तैयब मुनीर चौधरी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अल मुनीर स्कूल तलबा की फ़िक्री और सकाफती तरबियत के लिए पुरअज़्म है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इमाम्स अलाउंस प्रोग्राम के तहत जिला ननकाना साहब में आइमा मसाजिद की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। तहसील सतह पर कायम 3 काउंटर्स पर अब तक 500 आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से रजिस्टर्ड आइमा को माहाना 25,000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। उलमा कराम ने इस इकदाम को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि इससे आइमा कराम की माशी हालात बेहतर होंगे और सूबे में मजहबी हम आहंगी को फ़रोग मिलेगा। पंजाब हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद और उनकी तरक्की के लिए तारीख साज इकदाम कर रही है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त करें और मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। इसी सिलसिले में साहिवाल के किसानों को सब्सिडी पर ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम का अमल जारी है। मजीद बता रहे हैं खावर अली चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत जिला साहिवाल में 7,000 से ज़ायद किसानों ने दरख्वास्तें दी थी। कुरानदाजी के जरिए 218 अहल पाने वाले किसानों और काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर की चाबियां तकसीम करने की तकरीब जना हाल साहिवाल में हुई। जिला साहिवाल के सूबाई असम्बली के नुमाइंदों ने खुशनसीब किसानों और काश्तकारों को ट्रैक्टर की चाबियां दी। मरियम नवाज साहबा CM पंजाब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम अनाउंस की। किसानों को दिए जाने वाले ग्रीन ट्रैक्टर में पंजाब हुकूमत की तरफ से फी कस 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। जिला में मजमूई तौर पर 21 करोड़ 80 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। पंजाब हुकूमत किसानों की खुशहाली के लिए किसान कार्ड के जरिए इन्हें सूद के बगैर कर्जे, ज़रूरी दवाएं और खादों की कंट्रोल रेट्स पर फराहमी के लिए सब्सिडी दे रही है। पंजाब हुकूमत की तरफ से किसानों और काश्तकारों के लिए किए जाने वाले इकदाम से ज़रूरी पैदावार में इजाफा होगा। मरियम नवाज साहबा के ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत मेरा ट्रैक्टर निकला है तो बड़ा शुक्रगुजार हैं उनके। हमें मज़ीद मौका मिलेगा ज़राअत को निखारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी उनका। किसानों और काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर की तकसीम पंजाब हुकूमत का ऐसा मुनफरिद और मुफीद मनसूबा है जिससे किसानों और काश्तकारों की खुशहाली के साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली वाबस्ता है। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। मुमताज़ अदीबा, माहिर तालीम और दानिश्वर डॉक्टर सैयदा आरिफा ज़हरा लाहौर में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 83 बरस थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की है। उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल रही हैं वर्दा सलीम। तहजीब सिर्फ चंद जुमलों का नाम नहीं है, लिबास की वज़ाक़ता का नाम नहीं है। तहजीब दरअसल उस फ़िक्र की तरबियत का नाम है जब आपके दिल में शर का ख्याल ना आने पाए। दुनियाई इल्म और अदब की एक दरख्शां शख्सियत डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा की तमाम उम्र तालीम, ज़बान और सकाफत, ख़वातीन के हकूक़ और समाजी शऊर के फ़रोग़ की कोशिशों से इबारत रही। उनकी गुफ्तगू इल्म और अदब की रोशनी से मुज़य्यन, तारीख़ी बसीरत से मालामाल और इखलाकी तरबियत की अक्कास होती। ज़बान व अदब और तारीख़ के बारे में वसी इल्म उनकी पहचान था। उम्मीद आपको बनाने वाले से और बनाने वाले को आपसे है। मुझे लगता है इससे दुनिया तख्लीक हो गई, इसमें हम सब आ गए और किस कदर खामोशी से जो चीज़ उसमें छुपा के रखी मेरे खालिक ने, वो उम्मीद थी। सैयदा आरिफा ज़हरा तमाम उम्र दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता रही और मुख्तलिफ कौमी इदारों में आला जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। वो खवातीन के हवाले से कौमी कमीशन की चेयरपर्सन, जबकि पंजाब की साबिक निगरान वजीर भी रही। उर्दू ज़बान व अदब की दानिश्वर और तारीख की उस्ताद के अलावा बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाली। मुझे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की जो अदबी महफिलों की रौनक थी वो मांग पड़ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सैयदा आरिफा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनकी वफात को इल्म और अदब के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। सैयदा आरिफा की वफात से पाकिस्तान एक हकीकी दानिश्वर और बाअसूल उस्ताद से महरूम हो गया। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लोधरा में सैलाब मुतासिरीन की बहाली और माली इमदाद का अमल तेज़ी से जारी है। ज़िले इंतज़ामिया की निगरानी में मुतासिरा ख़ानदानों तक इमदाद की रकूम की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अब्दुल्ला डाहा रिपोर्ट करेंगे। सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के माली मसाइल के अजाले के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ और बहाली का सिलसिला मुसलसल जारी है। ज़िला इंतज़ामिया लोधरा के मुताबिक
अब तक 3100 से जायद सैलाब मुतासरा खानदानों में 9 करोड़ रुपए की रकम की माली इमदाद तकसीम की जा चुकी। होता यह है कि इनकी कंपनसेशन यहाँ पे आती है इनके कार्ड्स की सूरत में, और इनको कॉल्स की जाती हैं, इनको व्हीकल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं दोनों तहसीलों में, कहरोड़ पक्का और लोधरा। वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन फिर इनको यहाँ पे लेकर आती है अपनी निगरानी में, और यहाँ से इनको कार्ड्स डिस्पर्स किए जाते हैं। उत्थे कर साकू टोकन मिले थे, टोकन तो बाद साकू जड़ा है ना इत्थे कर बैंक ऑफ पंजाब ने साढ़े 55,000 जड़ा है ना वो मैसेज आया, उन्होंने 50,000 साकू नकद कैश दिते, बाकी उन्होंने ATM कार्ड दिते पे उतो को साकू में दो। इमदादी रकम की तकसीम के अमल को शफाफ और मौसर बनाने के लिए बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से काउंटर बनाए गए हैं, जहां से सैलाब मुतासिरीन बाइज्जत तरीके से अपनी इमदादी रकम और ATM हासिल कर रहे हैं। मुतासरीन को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी फराहम की गई है ताकि कोई भी अहल खानदान माली इमदाद से महरूम ना रह जाए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कई इलाकों में मुतासरीन को अपने घरों की तामीर नौ के लिए भी हुकूमत पंजाब की मामनत हासिल है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द, खुसूसन रात के औकात में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत स्कर्दू -7, लह -5, ज़ियारत -3, गिलगित -2, चित्राल और अस्तोर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का आगाज आज से रावलपिंडी में हो रहा है। पिंडी स्टेडियम में होने वाला मुकाबला दिन 2:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच जुमेरात और तीसरा मैच हफ्ते को रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 157 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 93 और श्रीलंका ने 59 मैचेस में कामयाबी हासिल की। एक मुकाबला बराबर रहा, 4 मैच बेनतीजा रहे। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 वनडे मैचेस खेले गए हैं और दोनों टीमों ने एक मैच में फतह हासिल की। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि बहैसियत कप्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कामयाबी पर खुशी हुई, सीरीज में की जाने वाली गलतियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप मैचेस जीतते हो तो आपको गलतियां नज़र नहीं आती, लेकिन ये एक वनडे फॉर्मेट है और इसके वर्ल्ड कप के लिए भी काफ़ी टाइम है। और जो T20 प्लेयर्स है, जाहिर सी बात है उनको पता है कि उन्होंने किस चीज़ पे काम करना है। मेरे यहाँ पे काम ये है कि जो अभी वनडे क्रिकेट है इसको कैसे बेहतर करना है और लड़कों को कैसे लेके जाना है। ऑफ कोर्स जो गलतियाँ हुई है वो हमने आपस में बात की है कि और जो ठीक भी कर सकते हैं वो सीनियर प्लेयर जो है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही टीम की परफॉर्मेंस को अच्छी बेहतर कर सकते हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान चारिथ सालंका ने कहा है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी जबरदस्त है। श्रीलंका और पाकिस्तान ने हमेशा अच्छी क्रिकेट खेली। रावलपिंडी स्टेडियम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चारिथ सालंका ने कहा कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान के पास अच्छे बैटर्स हैं तो हमारे पास जबरदस्त बॉलर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है। रावलपिंडी का मौसम बेहतरीन है, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने सह मुल्की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत सिकंदर रजा करेंगे। ब्लेसिंग मज़ारबानी इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। न्योमैन न्यामहरी को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे शिरकत करेंगे। सह मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। सह मुल्की सीरीज का पहला मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा।
45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब जेहलू में मुनक़िद हुई। आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में होने वाली तकरीब के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शूटिंग के मुकाबले 1 अक्टूबर था 10 नवंबर 2025 तक जारी रहे, जिनमें पाकिस्तान आर्मी, फ़ज़ाइया, बहरिया, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अलावा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और विफाकी राइफल एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले 2000 से ज़ायद निशानाबाजों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। पाक फौज ने तमाम 4 इंटर सर्विसेज मुकाबले जीतकर तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 अपने नाम की। पंजाब रेजिमेंट ने यूनिट फायरिंग प्रोफिशिएंसी मैच ग्रुप 1 में कामयाबी हासिल की। सिपाही मोहम्मद इरफान पंजाब रेजिमेंट ने मास्टर एट आर्म्स का एजाज जीता। नायब सूबेदार उमर फारूक आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट ने आर्मी 100 राइफल मैच ट्रॉफी हासिल की। तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल ने शिरका से खिताब करते हुए उनकी शानदार निशानाबाजी को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि निशानाबाजी में महारत हासिल करना फौजी तरबियत का बुनियादी हदफ होना चाहिए। बाद-ए-ज़ां आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज जेहलुम की 100 साला तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने 100 साला यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इदारे की 1 सदी पर मुहित शानदार खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और यादगार शोधा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। पाक आर्मी के बॉक्सर्स ने मुल्क को 2 तमगे दिला दिए। इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान की बॉक्सिंग टीम ने तारीख रकम की। 5 रुकनी टीम में से 4 खिलाड़ी पाक फौज से ताल्लुक़ रखते थे। मिस फातिमा ज़हरा ने 60 किलोग्राम और सिपाही कुदरतुल्लाह ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार मुकाबले किए। दोनों बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की और कांसी के तमगे जीतकर पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग के पहले तारीखी तमगे हासिल किए। ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग के शोबे में एक नए दौर की शुरुआत करार दी जा रही है। खुसूसन पाक फौज के खिलाड़ियों की मेहनत और नज़्म ज़ब्त को सराहा जा रहा है। गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से सिपाही कुदरतुल्लाह, मिस फातिमा ज़हरा, मिस मारिया, कोच हवालदार रिटायर्ड निसार और बरतानवी पाकिस्तानी दोहरी शहरियत रखने वाली खिलाड़ी मिस लौरा अकरम ने नुमाइंदगी की। मुल्क में हैवी बाइकिंग के फ़रोग के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाइकर्स अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ये बाइकर्स न सिर्फ नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों का रुझान बढ़ा रहे हैं, बल्कि समाजी खिदमत में भी मसरूफ़ हैं। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैवी बाइक्स जिन्हें देखते ही जहन में तेज रफ्तारी और खतरनाक राइडिंग का तस्वुर आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सरगर्म रोड रेबल्स और टेल ब्लेजर्स क्लब न सिर्फ बाइकिंग के शौक को फरोग दे रहे हैं, बल्कि इसे एक तरबियती और समाजी मिशन में तब्दील कर चुके हैं। मुख्तलिफ मॉडल्स के हैवी बाइक्स रखने वाले ये शौकीन अफराद अपने शौक को महफूज और मुनज़्ज़म सिमत में लेकर चल रहे हैं। हम लोग करते ही हैं कि यूथ को इकट्ठा करते हैं बाइक्स के बहाने से, और फिर क्योंकि हम लोग उस उम्र में हैं कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में आते हैं, तो हम लोग उनको सिखाते हैं कि सेफ बाइकिंग क्या होती है, हैवी बाइकिंग और नॉर्मल बाइकिंग में फ़र्क क्या है, सेफ्टी अपनी किस तरह इंश्योर करनी है, सड़क पे किस तरह इंश्योर करनी है। हमारे पास ऐसे राइडर्स भी हैं जो 30 साल से 35 साल से मतलब पाकिस्तान के बहुत पुराने राइडर्स हमारे ग्रुप में हैं। मेंटल पीस समझ लें या फिर एंजॉयमेंट समझ लें, स्ट्रेस रिलीवर समझ लें, एनीथिंग, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। 2023 में रोड रेबल्स के आगाज के साथ ही इन्होंने पहली मर्तबा मुनज़्ज़म हैवी बाइकिंग कल्चर की बुनियाद रखी। बाद में मोटोक्रॉस एंड ड्रैग के तहत टेल ब्लेजर्स का कयाम अमल में आया, जो आज रावलपिंडी इस्लामाबाद रीजन का सबसे बड़ा हैवी बाइकिंग क्लब बन चुका है। मेन मकसद है कि हम एक सेफ बाइकिंग को प्रमोट करें और उसके साथ साथ जो जितने नौजवान नस्ल है उसके लिए हमारा एक ये पैगाम होता है कि वो हमें देखें और हमसे इंस्पिरेशन लें। हेल्दी एक्टिविटी के लिए हम इकट्ठे होते हैं और हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम रोड के ऊपर जब भी ट्रैवल करें तो इसको मशीन को तो एंजॉय करें, लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को भी दें कि जब भी वो राइड करें तो राइड विद सेफ्टी। ये बाइकर्स सिर्फ रफ्तार पर यकीन नहीं रखते, बल्कि हैवी बाइकिंग कल्चर को एक नई पहचान दे रहे हैं। नौजवानों को मोबाइल और वीडियो गेम्स से हटाकर अमली और मुस्बत सरगर्मियों में लाना ही इनका असल मिशन है। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।